یہ زمین کی بہترین چیزوں میں سے ایک ہے. یہ ہے نیویارک کپ آف کافی. یہ عطا شدہ نہیں ہے شاید. دنیا کی سب سے مزیدار کافی ہے یہ، لیکن آپ اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں. اور اس پر یہ لکھا ہوا ہے، آپ کی خدمت کرنے میں ہماری خوشی ہے. ٹھیک ہے، میں نے کچھ دوستوں کو اکٹھا کیا ہے، کچھ انتہائی غیر معمولی آوازیں، کچھ مرد اور کچھ عورتیں جو خداوند سے سارے دل سے محبت رکھتے ہیں اور جو کچھ وہ روح کے پھلوں کے بارے میں جانتے ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں. خدا کی محبت، خدا کی خوشی، خدا کا اطمینان، اس کا تحمل، اس کی مہربانی، اس کی نیکی، اس کی ایمانداری، اس کا حلم اور اس کی پرہیزگاری. جب ہم کلام مقدس پر گہرائی سے غور کرتے اور روح کے پھلوں کو جانچتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہوں. اگر ہم وفادار ہیں تو وہ وفادار رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا انکار نہیں کر سکتا. جب میں یوتھ گروپ میں تھا، ایک مسیحی یوتھ گروپ، ہم گاتے تھے، میرے اوپر اس کا جھنڈا محبت ہے. یہ کچھ اس طرح سے ہوتا تھا، یسوع میری نجات کی چٹان ہے، میرے اوپر اس کا جھنڈا محبت ہے. میں نے واقعی کبھی سوچا نہیں تھا کہ جھنڈا کیا چیز ہے، اور پھر میں نے کلام مقدس دیکھا. ٹھیک ہے، اس سے میرا دھیان اس طرف ہوا کہ جھنڈا کیا ہے. جھنڈا وہ ہے جو ہماری زندگیوں پر بلند کیا جاتا ہے. واہ، اس سے مجھے احساس ہوا کہ حقیقتاً جھنڈا کیا ہے جو ہماری زندگیوں پر بلند کیا جاتا ہے. آپ کی زندگی پر اڑنے والا جھنڈا کیا ہے؟ شاید یہ الجھن ہے، غلطی ہے، لالچ ہے. ممکن ہے یہ آپ کا ذائچہ ہو، یا کوئی ہیرو ہو، یا کوئی سیلیبریٹی ہو، یا کہ آپ کا جھنڈا بہت ہی مختلف نوعیت کا ہے. کیا آپ کا جھنڈا کہتا ہے شاید محبت، خوشی یا اطمینان؟ کیا آپ جھنڈے کے مطابق جی رہے ہیں جو آپ کے اوپر اڑ رہا ہے، یا آپ کا جھنڈا آدھے مستول پر اڑ رہا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف چند لوگ ہی آپ کا جھنڈا دیکھیں مگر سارے نہ دیکھیں، ساری دنیا نہ دیکھے؟ کیا آپ کا جھنڈا یسوع نام کا ہے؟ کیا یہ قادر خدا ہے، یا کیا یہ ابدی باپ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خداوند ہے، صبح کا روشن ستارہ ہے؟ کلام مقدس فرماتا ہے ان کی آواز پوری زمین میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیا خرابی میں آپ کی آواز وہی کہہ رہی ہے جو آپ کے دل کی خواہش ہے؟ غالباً آپ کے سر پر اس وقت ایک جھنڈا لہرا رہا ہے جس پر لکھا ہے میری مدد کرو. تو ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں ایک مختلف جھنڈا جس کا آپ کو دعویٰ کرنا چاہیے. مجھے بہت امید ہے کہ آپ خود کو گھٹیا سمجھنا بند کر دیں گے. یعنی آپ چھوٹے ہیں، آپ کی چھوٹی سوچ آپ سے دور چلی جائے گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سوچنا شروع کریں گے اب سے بہت بڑے اور بہتر کاموں اور چیزوں کے بارے اپنی زندگی میں کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سب خدا کا شاہکار ہیں. اس نے مسیح یسوع میں ہمیں نئے مخلوق بنایا ہے تاکہ ہم اچھے کام کر سکیں، اچھے کام جن کا اس نے ہمارے لیے منصوبہ بنایا ہے، جو اس نے پہلے سے تیار کیے ہیں بہت عرصہ پہلے کہ ہم ان میں چلیں. اس سے مجھے اعتماد ملتا ہے. میں کافی مصروف تھا، بہت زیادہ مصروف، جیسا کہ ہم اکثر اپنے کریئر میں ہوتے ہیں، اور سالہ سال تک یہ لگتا رہا جب میں ماضی بارے سوچتا تھا کہ میں نے کیا حاصل کیا ہے، میں نے کیا پایا اپنے کاروبار کے نتیجے، میں خداوند سے کہتا رہا کہ پھل کہاں ہے،
یہ एक ऐसी चीज है जिसे गुजरे सालों में मैंने बार बार दरियाफ्त किया, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में कभी वो फल नजर ना आया। दरहकीकत मैंने अपने ईमान के मुतालिक दूसरों से बात करना ही छोड़ दिया। यूं समझें मैं एक पोशीदा मसीही बन गया था। मैं ऐसा शख्स जो ईमान रखता है पर इसके बारे कभी बात नहीं करता और यकीनन उसका मुजाहिरा करने की कोशिश भी नहीं करेगा। मुझे कलाम मुक़द्दस पर कोई हकीकी गिरफ्त न थी, क्योंकि मैं उसे पढ़ता ही नहीं था। मैं चर्च जाया करता था, वो भी कभी कभार। मैं कभी कभार दुआ भी करता था, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा खो रहा था। वो जिंदगी जो हम पर जाहिर हुई है कलाम मुक़द्दस के जरिए से, जो हमें जीना सिखाता है, दुआ करना सिखाता है, खुशी करना सिखाता है, रूह के फल तक रसाई हासिल करना सिखाता है और बड़ा फल लाने वाले शानदार दरख्त बनना भी सिखाता है हमें। शानदार दरख्तों का फल, कुछ मुख्तलिफ किस्म का फल, लेकिन दुनिया की परवरिश का फल। बाज़ औक़ात हमें जरूरत होती है या खुदा को हमें फेरने की जरूरत होती है। इसको तौबा कहा जाता है, जिसका मतलब है कि आप एक तरफ जा रहे हैं और आप रुक जाते हैं और आप मुड़ते हैं और दूसरे रास्ते को चले जाते हैं, जो कि दर हकीकत आना है, यानी यीशु मसीह के सामने आना। तमाम सकाफतों में हमें फल का तस्वुर मिलता है। हम सब इससे वाकिफ हैं कि फल उगना कैसा लगता है और वो अमल कैसा होता है, और खुदा हमें समझाने के लिए रूह के फलों और मुख्तलिफ किस्म की अमसाल इस्तेमाल करता है कि हमारे साथ किस तरह शराकत करता है और हम सब में और हमारी जिंदगियों के जरिए किस तरह जुम्बिश और काम करता है। चुनाचे जब हम फल का सोचते हैं तो हमारे जहन में सवाल आता है कि फल है क्या? ठीक है, फल ऐसी चीज है जो वक्त का नतीजा है। एक बीज को उस हालत तक पहुंचने में वक्त लगता है जहां पर वो फल ला सकता है, लेकिन वो फल जड़ों के साथ राब्ते का नतीजा होता है, यके बाद दीगरे मौसम के ग़िज़ाई अज्जा का इस्तेमाल करते हुए, जिसका नतीजा फल होता है। और फल न सिर्फ ये पौधे की हतमी पैदावार होती है, ये वो बर्तन भी होता है जो बीज को संभालता है। लिहाजा ये बढ़ोतरी का एक एहसास है। जब हम फल का सोचते हैं तो सिर्फ फल पर इख्तिताम नहीं होता, आगाज भी फल ही से होता है। जब हम रूह के फल का सोचते हैं, ये खुदावंद के साथ ताल्लुक की एक खूबसूरत पैदावार है। रूह का फल ऐसी चीज नहीं कि हमें सख्त मुशक्कत करनी पड़े और अपने अंदर गहरी खुदाई करनी है, पैदावारी के लिए बड़ी कोशिश करनी है। रूह के फल की खुदावंद के साथ चलने के वक्त की कुदरती अफजाइश होती है। लिहाजा जब हम कहते हैं कि हम मजीद मोहब्बत चाहते हैं या मजीद इत्मीनान चाहते हैं या मजीद तहम्मुल चाहते हैं या कोई और फल चाहते हैं, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं जो हम अपनी ताकत से कर सकते हैं या खुदावंद के साथ पैवंद हुए बगैर इस काबिल हो सकते हैं। ये ऐसी चीज है जो खुदा का वादा है कि जब हम अपनी जिंदगियों को उसमें पैवंद करते हैं, जब हम अपनी जड़ें उसके कलाम में और रूहुल कुद्स के साथ चलने में गहरी करते जाते हैं, तो तमाम फलों तक रसाई हासिल करते हैं, यानी खुदा का वादा पूरा हो जाता है। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, कि जब हम ऐसी हालत में होते हैं जिसमें हमें इन चीजों की जरूरत है, तो हम उस फल तक पहुंचने और उस पर तवज्जो करने के काबिल हो जाएंगे जो हमारे अंदर है। और ये हमारी अपनी ताकत से नहीं होगा, बल्कि रूहुल कुद्स की कुदरत से होता है। फल की खूबसूरत बात ये है कि पौधे जो फल पैदा करते हैं, फितरी तौर पर उनके अपने लिए नहीं होता, यानी पौधे खुद अपने फल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो पौधे की बढ़ोतरी होती है। आप जानते हैं कि फल की पैदावार उसकी कामयाबी है, लेकिन फितरी तौर पर वो फल दूसरे जानदारों के लिए खुराक का जरिया बन जाता है। वो, जैसा मैंने कहा, उस बीज का बर्तन बन जाते हैं।
हर उस चीज के साथ जिसकी उसे जिंदा रहने, फलने फूलने और एक नया पौधा बनने के लिए जरूरत है। इसी तरह से जब हम रूहुल कुद्स के साथ शरीक होते हैं तो अपनी जिंदगियों में वो फल पैदा करते हैं। ये बात हमारे साथ खत्म नहीं हो जाती। रूह के फल जब हमारे जरिए जाहिर होते हैं तो ऐसी चीज बन जाते हैं जो हमारे इर्द गिर्द लोगों को बरकत देते हैं। वो ऐसी चीज बन जाएंगे जो हमारे आसपास लोगों को इस तरह मुतासिर करती है, जो उन फलों में इजाफा करती है और जो लोगों को खुदा के साथ ताल्लुक की तरफ खींचती है। क्योंकि जब उनको पता चलता है कि आप यीशु के पैरोकार हैं, ये एक चीज है, लेकिन जब वो आपकी जिंदगी में फल देखते हैं, और हम दरख्त को फल से पहचानते हैं, हम लोगों को उनकी तर्ज जिंदगी में उनके अकायद की वजह से जानते हैं। और इस तरह जब आप यीशु पर अपने ईमान को कायम रखते हुए रूह के फल पैदा करते हैं तो लोग उस पर तवज्जो देते हैं और वो भी उसमें पैबंद हो जाते हैं। मैंने दरियाफ्त किया, रूह का फल हर फल जाहिर करता है कि खुदा कौन है और बैक वक्त उसके पास सब चीजें हैं। लिहाजा खुदा मोहब्बत है, खुदा खुशी और इत्मीनान है, खुदा दिलों का सुकून है। और मैंने ये भी पाया कि जहाँ मैं बरसों उसके साथ अपनी सैर में कतई तौर पर उसके साथ ताल्लुक में रहना नहीं चाहती थी क्योंकि मैंने रियाकारी देखी थी, लेकिन फिर जहाँ उसने हकीकत में मुझे जिस्मानी तौर पर शिफा बख्शी और मैं ये वजाहत नहीं कर सकती, और फिर उसने मुझे बदरूहों के अजाब से निजात बख्शी और मैं इसकी भी वजाहत नहीं कर सकती, और इससे मुझे एहसास हुआ कि वो हकीकी है और वो मेरे साथ एक तरह का बराह रास्त ताल्लुक रखना चाहता है। इससे मैंने सीखा, ठीक है, मैं उसके पीछे जाना चाहती हूँ और इससे मालूम करती हूँ कि फल कैसे निकलता है। ठीक है, तो मोहब्बत महज ये कहने से बढ़कर है कि मैं तुमसे मोहब्बत रखती हूँ। ये एक रजामंदी है, ये इलाही मोहब्बत है, ये गैर मशरूत मोहब्बत होती है और इसको समझना मुश्किल है क्योंकि खुदा हमसे हर वक्त मोहब्बत रखता है, हमेशा कतई नजर कि ये गैर मशरूत है। और लोग इसको तशबीह देते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को कैसे देखते हैं और अपने बच्चे से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन हकीकत में खुदा इस तरह मोहब्बत चाहता है कि हम पूरी तरह अपनी खुदी का इनकार करें जो हमारे अंदर है। उससे पूछें कि एक शख्स को कैसे देखें, फिर चाहे उन्होंने आपके साथ कैसा भी सलूक किया हो या उनका जो भी तारुफ हो, उनके अंदर सिर्फ अच्छाई को देखें और उनसे प्यार करें, ख्वाह वो कुछ भी हो। अब मेरा ख्याल है कि ये सबसे गलत फहमी वाले फलों में से एक है, और कई बार जब हम कहते हैं कि हमें प्यार से काम करना चाहिए तो ये हमें लोगों को फाल करने और जहरीले ताल्लुकात बनाने की इजाजत देता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना पाँव नीचे रखें या किसी के साथ हदबंदी कर लें जो सेहतमंद नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि हम माफ करें और हम जाने दें और आगे बढ़ें और उनको दिखाएं। ये उन पर जाहिर करने का एक मौका है, ठीक है? ये खुदा की फितरत है, ये खुदा का किरदार है। खुशी का मतलब है शादमानी, ठीक है? मुझे कलाम मुकद्दस से मोहब्बत है और मुझे पसंद है कि खुशी एक मुस्तकिल कैफियत है। लिहाजा रूह के फल एक लिहाज से इंतखाब हो सकते हैं जो मुसलसल हालत होती है जब आप खुदा के साथ ताल्लुक में होते हैं। जैसा मैंने कहा कि उसके पास हमेशा ये सारी चीजें हैं और इसलिए वो मोहब्बत को कभी नहीं रोकता, वो खुशी को कभी नहीं रोकता। वही वो चीजें और खुशी और शादमानी मुसलसल है। ये उसकी फरावानी है। खुदा की तारीफ के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता है, शुक्रगुजारी के लिए हमेशा कुछ होता है, और यहाँ तक के कलाम मुकद्दस राग के लिए खूबसूरती, मातम के लिए खुशी, भारीपन के लिए तारीफ के मुतालिक जिक्र करता है। लिहाजा इसका मतलब ये नहीं कि हमें परेशान होने, अफसुर्दा होने या गमज़दा होने की जरूरत नहीं, ठीक है? जब मेरे बाप का इंतकाल हुआ, मेरे लिए हकीकत में बहुत मुश्किल था क्योंकि उसने मुझे पाला पोसा और वो एक बीमारी की वजह से मर गया जो मेरा ख्याल था कि वो उससे तंदुरुस्त हो जाता, लेकिन वो तंदुरुस्त ना हुआ। लेकिन खुदा अब भी भला और मौजूद था और मुझे खुशी का इंतखाब करना और खुदा की तरफ दौड़ना था। जब मैं खुशी तलाश करके ये नहीं कह सकती थी तू मुसलसल खुशी है, और मैं जानती हूँ कि मुझे वो पहलू मुंतखब करने की जरूरत है जिस तरफ अब आप हो, और ये जिंदगी को बदलने वाला निहायत असर अंगेज था क्योंकि हालात मेरे रवैये पर हुक्म नहीं चला सकते, ठीक है? इससे मुझ पर जाहिर हुआ कि खुश होने वाली चीजें हैं, हालांकि उस वक्त मुझे उनकी समझ नहीं होती, ठीक है?
اس نے رومیو کا حوالہ پیش کیا جو کہتا ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے، کچھ چیزیں نہیں، اچھی چیزیں نہیں، بلکہ سب چیزیں۔ رومیو 8:28۔ اطمینان آہستہ چلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بلکہ اصل میں یہ آرام کا انتخاب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اسے قطع نظر کے کس قدر مشکل یا پاگل پن یا افراتفری یا اگر آپ کے ارد گرد طوفان ہے تو کیا آپ لنگر انداز ہو سکتے ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ ہم حالات کا رد عمل کیسے کرتے ہیں، اور میرے لیے یہ ہمیشہ آسان نہیں رہا۔ میں بہت حوصلہ مند اور پرجوش ہوں، اور جب میں دیکھ نہیں سکتی کہ میرے سامنے کیا ہے تو آرام سے باہر نکلنا آسان ہوتا ہے۔ اطمینان کھو جانا آسان ہوتا ہے، لیکن یسوع سلامتی کا شہزادہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم مسلسل سلامتی اطمینان رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ خود ہے، اور اگر وہ ہم میں رہتا ہے تو ہم مسیح کی عقل رکھتے ہیں اور یہ ہمیشہ دستیاب ہے۔ جب ہم کسی درخت یا پودے کو فطرت میں دیکھتے ہیں، بعض اوقات اگر وہ دور ہوتا ہے اور پھل کا موسم نہیں ہوتا تب یہ کہنا مشکل ہے۔ جب تک آپ قریب سے نہیں دیکھتے کہ وہ پودا کیا پیدا کر رہا ہے، پتوں کو دیکھ کر، پھل کو دیکھ کر، آپ لازمی طور پر نہیں کہتے کہ وہ درخت یا وہ پودا کس قسم کا ہے۔ اسی طرح جب دنیا ہمیں دیکھتی ہے تو ہمیں اس سے جانتی ہے جو ہم پیدا کرتے ہیں، جو ہماری زندگیوں میں سے باہر آتا ہے۔ خوبصورت چیز یہ ہے کہ جب آپ یونانی زبان میں لفظ پھل کو دیکھتے ہیں جو ہم غلطیوں میں روح کا پھل سنتے ہیں، تو اس لفظ پھل کا مطلب پیداوار بھی ہے اور عمل بھی ہے، لہٰذا یہ ہمارے اعمال کی ایک خوبصورت ملاقات ہے۔ خداوند کے فرما بردار ہوتے ہوئے اور اس کی پیداوار کے موافق چلتے ہوئے وہ ان چیزوں کو ہماری زندگیوں میں لاتا ہے جن کو ہم اپنے طور پر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے، اطمینان جو کہتا ہے میں جانتی ہوں کہ مشکل لگتا ہے، میں فطری طور پر سامنا کر رہی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ خدا نے مجھے یہ کرنے کے لیے کہا ہے اور اس نے فرمایا ہے کہ اس نے مجھے فتح بخش دی ہے، لہٰذا میں اس حالت میں کامل اطمینان کے ساتھ چلوں گی۔ محبت جو غیر معمولی ہے، محبت جو کہتی ہے میں اس طرح سے محبت رکھوں گی جس طرح دنیا نہیں رکھتی، میں اپنے دشمنوں کے لیے برکت چاہوں گی، میں تب بھی محبت پر قائم رہوں گی جب نفرتوں میں گھری ہوں۔ پھل اور بڑھوتری میں اتنا ہی فرق ہے کہ بحیثیت ایماندار ہماری زندگیوں میں کیسے اعمال اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور ایسا تب ہوتا ہے جب ہم روح القدس کو اپنے ذریعے پھل پیدا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یسوع نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، میرا باپ باغبان ہے۔ اب انگور کی باغبانی کرنے والا وہ ہے جو بیلوں کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے اور کاشت کرتا ہے، اور اس میں ٹہنیوں کی کاٹ چھانٹ اور غیر ضروری جڑی بوٹیوں کو اور درختوں اور جھاڑیوں کو کاٹتا چھانٹتا ہے جو دھوپ کو روکتی ہے اور بیل کے پھلنے پھولنے میں زیادہ مشکل پیدا کر دیتی ہے۔ خدا ہمیں تربیت دیتا ہے کہ اپنے گناہ سے مقابلہ کریں۔ خدا ہمیں تربیت دیتا ہے اپنی خودی سے نمٹنے کی۔ خدا ہمارے راستے میں آنے والی معمولی رکاوٹوں کو بھی کاٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی لگائی ہوئی رکاوٹیں ہوتی ہیں، یہ وہ رکاوٹیں ہیں جن کی آپ نے پرورش کی، جو کہ آپ کی ترقی کو روکتی ہیں۔ میرے پاس اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ لاس اینجلس میں ہمارے پچھلے صحن میں ہمارے پاس لیمو کا ایک شاندار درخت تھا اور وہ بہت رسیلے لیمو پیدا کرتا تھا، لیکن جیسے اس کے ارد گرد درخت بڑھتے گئے اس کو ڈھانپنے لگے اور باڑیں اونچی ہو گئی تو انہوں نے دھوپ کو روک دیا۔ ایک دن مجھے غصہ آیا اور میں نے ان تمام شاخوں کو کاٹ ڈالا تاکہ لیمو کے پودے کو دھوپ مل سکے اور وہ بڑھ سکے، زیادہ روشنی ملے اسے۔ تو پھر کیا ہوا ہوگا؟ جیسے ہی اس تک دھوپ پہنچنے لگی اس پودے پر ڈھیروں لیمو لگ گئے۔ ہمیں اس کا علم بھی نہیں تھا۔ ہمارے پاس ایک بڑا لیمو کا درخت تھا، ہمیں پتا نہیں تھا اس کا، اور کئی برسوں سے اسے دھوپ نہیں ملی تھی تو اس نے پھل نہیں دیا تھا۔ آپ نے دیکھا یہ کچھ ہوا تھا
जब खुदा की रोशनी हमारी जिंदगी में आती है, जब ये हमारे अंदर दाखिल होती है और हम अपने आप को अपने तरीके से साफ करते हैं, या जब खुदा उस शाखों की काट छांट करता है जिनकी हमें अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं, ताकि हम रोशनी हासिल कर सकें, हम खुदा का कलाम हासिल कर सकें, खुदा की रिफाकत हासिल कर सकें और परस्तिश के फवायद हासिल कर सकें, और फिर हम बिल्कुल मुख्तलिफ फल बन जाते हैं मुनफरिद जायके के साथ, और वो बन जाते हैं जिसके लिए हमें तश्कील दिया गया था। मैं शख्सी तौर पर कुछ तरीके बयान करना चाहती हूँ जो मैंने जिंदगी गुजारने के मुतालिक बरसों में सीखे हैं। जिंदगी जो रूह के फल के साथ होती है, मैं जी रही हूँ। मैंने ऐसे शख्स से शादी की है जो काफी अरसा कैद में रहा था, और हमने असल में उसकी कैद के दौरान शादी की थी। और उस अमल में मैंने ये सीखा कि अगर कोई फल है जिसकी एक मुद्दत से ख्वाहिशमंद थी, तो उसका बहुत कुछ खुदा के साथ ताल्लुक में से निकलता है। इकट्ठे वक्त गुजारना और उसके कलाम को चबाना और उसे अपनी जिंदगी बनने देना। लेकिन मैंने जो पाया वो ये है, अगर कोई फल है जिसके साथ मुझे वाकई मुश्किल पेश आ रही है, या मैं उसको अपनी जिंदगी में नहीं देख रही, या हालात है जहाँ मैं समझ रही हूँ मुझ में तहम्मुल नहीं है, मुझ में इत्मीनान नहीं है, और मैंने पाया कि हम खुदा से मांग सकते हैं और वो हमें इत्मीनान को मुंतखब करने या शनाख्त के मौके फराहम करेगा कि एक सूरत हाल या एक शख्स या एक चीज हमारा इत्मीनान चुराने की कोशिश कर रही है। और इसमें खूबसूरत बात यह है कि खुदा हमें हमारी बर्दाश्त से ज्यादा कभी आजमाइश में नहीं डालता। चुनाचे इसका मतलब है कि अगर ऐसे हालात हैं जो हमें बेआराम होने या इत्मीनान में रहने को चैलेंज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर खुदा ने हमें पहले से ही लेस किया है, जिस चीज का हम सामना कर रहे हैं उसके लिए हम पहले से ही लेस हैं, और ये हैरान कुन है क्योंकि वो एक अच्छा बाप है। ठीक है, हर एक अच्छी या कामिल नेमत बाप की तरफ से है, या आसमानी नूरों के बाप की तरफ से आती है, और उसके बारे में मुझे ये पसंद है क्योंकि अगर हालात मुश्किल हैं और जिस फल का मुझे एहसास है शायद मैं कुश्ती लड़ रही हूँ, लेकिन ये बार बार आती रहती है, ये सिर्फ इसलिए है कि खुदा जानता है कि आपके पास वो है जिसकी आपको जरूरत है। आपके पास आवाज है, आपके पास हर वो चीज है जिसकी आपको हालात या सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जरूरत है। और मैं बयान करूंगी, जैसे मैंने अपने शोहर की कैद का जिक्र किया था, कि मैंने वाकई मुश्किल वक्त गुजारा था। 3 चीजें, इत्मीनान, तहम्मुल और ईमानदारी के साथ। अब इससे मेरी मुराद है, मैं मायूस, फिक्रमंद और परेशान होना चाहती थी क्योंकि उसके घर आने का इंतजार करते हुए मैं बहुत बेचैन थी। किसी वक्त हमें उसकी हकीकी दुनिया से आने की तैयारी में बहुत कुछ करना पड़ेगा, और कई ऐसे औकात थे जहाँ मुझे याद आया या मैंने खुद को पकड़ा, और जो भी था मुझे सब्र नहीं था। ठीक है, मैं मायूस थी। लोगों ने हमें जिस तरह जवाब दिया, मैं उससे नाराज थी, हालांकि मैं जानती थी कि उसका यीशु से सामना हुआ है और खुदा ने उसकी जिंदगी को यकसर बदल दिया। और यूं मुझे उससे प्यार हो गया क्योंकि मैंने उस आदमी को देखा जो वो बन चुका था और अब जो वो है। और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हमें अपनी शादी पर काम करने में बरसों लगे, जैसे कोई भी करेगा, लेकिन हमारे मामले में ठीक है, हमें मुश्किलात का सामना था। मुआशरे ने उस पर बहुत सी तोहमतें लगाई, जिसकी वजह से दुश्मन शैतान के लिए दरवाजा खुला रखना और उससे अलहदा होना आसान था, जो खुदा हमेशा है। ठीक है, चुनाचे इत्मीनान में ना रहने के लिए, ईमानदार होने की चाहत ना रखने के लिए, हम उस हकीकत में हार मानना चाहते थे। हम कहना चाहते थे, मैं ये नहीं कर सकती, आप जानते हैं ये बहुत मुश्किल है, या ऐ खुदा, हमें यकीन नहीं है कि तू कामयाबी का खुदा और वादों का खुदा बनने जा रहा है और तू हमारी मदद करेगा, क्योंकि मुआशरा कहना चाहता है नहीं, आपका शुक्रिया। और वो हकीकी है, वो हकीकी जिंदगी के हालात हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकती कि जो हो रहा था जब हमने उस पर गौर करना शुरू किया तो हमें एहसास हुआ कि वो झूठ थे, कि हमें इत्मीनान हासिल हो सकता था, हम बर्दाश्त कर सकते थे, हम तहम्मुल कर सकते थे, हम इंतजार कर सकते थे, ये सब काम करेगा,
اور ہم نے کلام مقدس کی طرف رجوع کیا اور حوالہ جات تلاش کرنا شروع کر دیے جو برعکس کہتے تھے، ٹھیک ہے، جن جھوٹوں پر ہم یقین کر رہے تھے یا جس نے ہم پر ظاہر کیا تھا کہ اطمینان کیا ہے، کیا تحمل کیا ہے اور برداشت کیا ہے، ایمانداری کیسی دکھائی دیتی ہے۔ پھر اس نے ہمیں ایک نیا نقطہ نظر دیا اور ہم ان چیزوں کا بلند اعلان کرنے یا ایک دوسرے کے لیے مستقبل کی بنیاد پر دعا کرنے کے قابل ہو گئے۔ اور اس نے ہمارے رویوں کو بدل دیا، اس نے ہمارے خیالات کو بدل دیا، اس نے خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بدل دیا، اور اب اس نے ہمیں ایسی ہی حالات میں دوسرے لوگوں سے محبت رکھنے کی اجازت دے دی ہے، کیونکہ ہم وہاں جا چکے ہیں اور ہم سمجھ گئے ہیں کہ کیا چیز کام نہیں کرتی۔ اور اگرچہ حقیقت میں خدا ہمارے واسطے وہ بننے کی کوشش کر رہا ہے جو وہ ہے، اور کلام مقدس میں وہ ہمیں ان لمحات میں کس چیز میں بلانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اظہار ثانی کے بارے میں بات کرتا ہے، جہاں یہ کہتا ہے ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے، حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے، ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے۔ ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسوع کی موت کے لیے پھرتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی ہمارے بدن سے ظاہر ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ جن اوقات میں سب پر اظہار ثانی کی جاتی ہے، آپ نے یا آپ کے خاندان نے اس کا تجربہ کیا ہوگا، اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں کلام مقدس پڑھتی ہوں کیونکہ میں نے محسوس کیا گویا روح القدس اس حقیقت کو اجاگر کر رہا ہے کہ اگر تم خداوند کے ساتھ قربت کا انتخاب کر لو تو ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو، کیونکہ کلام مقدس اس کے متعلق بات کرتا ہے کہ ہم اس کے دکھوں میں شریک ہیں۔ پہلا پطرس 4 باب 12 سے 15 آیت تک۔ جب ہم ستائے جاتے ہیں بطور مسیحی، یہ متوقع ہے، یہ ایک برکت ہے، اس کے بارے میں اس طرح سوچنا عجیب ہے، یہ الٹ اور پسماندہ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب آپ ہر طرف سے مصیبت میں ہوتے ہیں، جب آپ کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، جب آپ کو ہلایا جاتا ہے، اگر آپ کو ستایا جاتا ہے، اگر معاملات آپ کی توقع کے مطابق نہیں چلتے یا حقیقی زندگی کے خطرہ یا مخالفت ہے، تو یہ کہنا آسان ہوتا ہے میں یسوع کا انکار کرتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا، مگر میں آپ کو جو حوصلہ دینا چاہتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ خدا مضبوطی کر رہا ہے اور اس سے جو پھل آنے والا ہے وہ خوبصورت ہے، یعنی سوچا جائے تو اس پھل کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ایک درخت ہے اور کلام مقدس پہلے بیج کی بات کرتا ہے، اسے مٹی میں بویا جانا اور مرنا پڑتا ہے، اسے چھپانا پڑتا ہے، اور پھر جب بیج مٹی کے اندر ہوتا ہے تو اس کی بالیاں نکلتی ہیں جب اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ جب یہ ایسی جگہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، اگر آپ اس کے متعلق سوچیں، اگر آپ زیر زمین ہیں، وہاں تاریکی ہے، یہ مشکل ہے، یہ خوفناک ہے، آپ آگے کا راستہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن زیادہ سے زیادہ غذائی اجزاء حاصل کرنے کے لیے یہ اندھیرے میں ضروری ہے۔ آپ کو خدا سے وہی ملتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، تو یہ ایک جگہ ہے جہاں خدا آپ سے ملے گا، کم نہیں بلکہ میرا ایمان ہے بہت زیادہ۔ اگر آپ کبھی حیران ہوئے ہیں آپ کو دھوکہ کیوں دیا گیا، پتے آپ کے خلاف کیوں کھیلے گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک دشمن ہے، اور ہمارے پیدا ہونے کے دن سے ہی ہمارا دشمن ہمارے اندر ہے۔ ہمارا دشمن بیرونی نہیں، ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارے اندر موجود ہے۔ وہ اس جہان کا خدا ہے، وہ ہوا کی عمل داری کا حاکم ہے، ساری دنیا کو گمراہ کرنے والا۔ ساری دنیا شریر کے قبضے میں ہے۔ یہاں ایک مطلق حقیقت ہے، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ اس جہان کے خدا نے ایمان نہ لانے والوں کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے تاکہ وہ مسیح کے جلال کی خوشخبری کی روشنی کو نہ دیکھ سکے جو خدا کی شکل پر ہے۔ کلام مقدس فرماتا ہے، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی نہیں۔
جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ اس کی کسی بات میں حقیقت نہیں، لیکن خداوند وفادار ہے اور آپ کو شریر سے محفوظ رکھے گا۔ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دو۔ اس لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے دور بھاگ جائے گا، تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ ابلیس آپ کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ خداوند نے کیا وعدہ کیا ہے؟ اور وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور پھر یہ کہ امن کا خدا جلد ہی شیطان کو آپ کے پاؤں تلے کچل دے گا۔ خدا ہمیں کیا کرنے کی ہدایت دے رہا ہے؟ ہمیں زندگی کی کس مہارت کو اپنانا ہوگا؟ ہمیں خدا کے سب ہتھیار باندھنے ہوں گے تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے خلاف قائم رہ سکیں، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ یہ ایک بڑی تصویر ہے۔ ہمارا اصل مقصد اسی میں پنہاں ہے۔ جب میں بڑی ہو رہی تھی، میرے والدین خدا پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اصل میں ان کا خداوند اور روح القدس کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں تھا۔ ان کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ جہاں وہ اپنی زندگی مسیح کی خداوند کو دیتے، اور نتیجے میں ان میں روح کا کوئی پھل نہیں تھا۔ ان میں بے چینی تھی، کاملیت پرستی تھی، اہلیت اور محبت کمانے کی بڑی کوشش میں تھے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ نے یہ پہلے کبھی نہیں سنا تو سنیے۔ یسوع مسیح پر ایمان خدا باپ کے ساتھ تعلق میں ایک چیز ہے جو آپ کو کبھی کمانا نہیں پڑے گا۔ یہ ایسی چیز ہے جسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو کبھی کامل نہیں ہونا پڑے گا۔ یہ ایک فضل کی نعمت ہے، اور اگر آپ اپنی زندگی میں روح کا پھل پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ وہاں بیٹھے سوچ رہے ہیں میں ایک غیر معمولی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی سے ایسی چیزیں پیدا ہوں جو ان لوگوں کی زندگی کے پھلوں سے مختلف ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں مختلف طرح سے چل رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی دنیا جیسی نظر آئے۔ میں خداوند کے آگے فروخت ہونا چاہتا ہوں۔ میں برتن بننا چاہتا ہوں جس کے ذریعے وہ پھل پیدا کر سکے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو آج میری آپ کو دعوت ہے کہ یسوع کو اپنی زندگی کا خداوند قبول کر لیں، اور یہ دو کام آپ کو جلد از جلد کرنے ہوں گے۔ کیسے؟ اول آپ کو ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ یسوع نے اپنی جان قربان کی تاکہ آپ نجات پائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں، تاکہ اس کا خون آپ کے گناہوں کو ڈھانپ لے۔ یہ کمایا نہیں جا سکتا، ایسا کوئی خاص عمل، طریقہ یا راستہ نہیں جو آپ کو نجات پانے کے لیے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہ یسوع نے اس سب کی قیمت ادا کر دی ہے۔ دل میں اس پر ایمان لانا اور قبول کرنا پہلا قدم ہے، اور پھر دوسرا قدم ہے اپنی زندگی دینا، اپنی زندگی کی حاکمیت روح القدس کے سپرد کرنا، خدا کو موقع دینا کہ آپ میں اور آپ کے ذریعے کام کرے، اور کہنا میری زندگی اب میرے مقاصد کے لیے نہیں ہے، میری زندگی کا اور میرا مقصد وہ پھل پیدا کرنا ہے جو باپ مجھ سے پیدا کرے گا، یعنی غیر معمولی محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، تمام پھل جو میں اپنے طور پر پیدا نہیں کر سکتا، لیکن میرا ایمان ہے کہ خدا کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے میں ہر فیصلہ اس پر چھوڑتا ہوں۔ میں اپنا وقت، اپنی توانائی، ہر چیز جو خداوند نے مجھے دی ہے اس کے سپرد کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے جو منصوبہ رکھتا ہے وہ کرے، کیونکہ خداوند کے پاس آپ کے لیے اچھے منصوبے ہیں، اور ان میں امید ہے، ان میں مستقبل ہے، اور اس لیے روح القدس کا پھل پیدا کرنے کے لیے صرف یسوع کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرنے اور خدا کو ہاں کہنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں،
क्योंकि इसको कबूल किए बगैर कोई चारा नहीं हमारे पास। हमें उसकी हाकमियत को अपनी जिंदगी से बालातर रखना होगा। मैं आपको खुदावंद के जलाल की बाबत अपने तजुर्बात बयान करना चाहता हूं। मैं यहां बैठा हूं जो कि वाकई बहुत ही पुरसुकून जगह है, दरिया केंटकी के किनारे। और ऐसे औकात में मैं रहमत के बारे में सोचता हूँ। खुदा जो रहमत और इत्मीनान हमें देता है वो समझ से बालातर है। सच में हम उसका इदराक भी नहीं कर सकते। ये खुद को इत्मीनान देने से कहीं बढ़कर है। ये अपने आप को खुदा का कलाम खोलने की इजाजत देना और उसकी बातों पर ध्यान लगाना है। ये हमें इत्मीनान बख्शता है, वरना मैं यहाँ पुरसुकून जगह पर होकर भी अफरा तफरी में होता, उलझन का शिकार होता। मगर खुदा मुझे तजर्बा करवाने लाया है इस जगह की खामोशी का। अगरचे आपको दूर हाईवे पर कारों की और शायद ट्रक्स की आवाजें आ रही हों, परिंदों की आवाज सबसे अलग है। और जैसे ही सूरज गुरूब होने लगता है, आपको एहसास होता है कि दुनिया अब भी खुदावंद की है। और ये रहने के लिए निहायत खास जगह है। एक शानदार जगह और उसका जलाल हो। आमीन। दूसरा तिमोथियस 2:20 में बताया गया है कि घर में कितने बर्तन होने चाहिए। कुछ खास मकासद के लिए होते हैं और कुछ को अलग करके खास मकासद के लिए साफ किया जाता है। कुछ तर्जमे कहते हैं खास मकासद के लिए, और अपनी जिंदगी बतौर बर्तन खुदा के मकसद के लिए देने से हम अपने आप को अंगूर के दरख्त में पैबंद कर सकते हैं, यीशु की बेल में, जिसका मतलब है उसके साथ राब्ता में हमारा खामोश वक्त, उसकी तलाश में, उसकी मोहब्बत में अपना ध्यान उस पर लगाने का वक्त, कि उसमें हम कुदरती तौर पर रूह का फल पैदा करेंगे। और ये कि हम जिस भी हाल में हो वो फल हमारे लिए दस्तयाब होंगे, यानी कि वो फल हमारी रसाई में होंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम ये तर्ज अमल अपनाएंगे तो रूह के फल जरूर पैदा करेंगे। और इसलिए मैं आपको आज ये कहकर चैलेंज करती हूँ कि आप कहें कि मैं पाक होना और खास मकसद के लिए अलग होना चाहता हूँ, और मैं गैर मामूली काम करना चाहता हूँ। मैं फल पैदा करने में शरीक होना चाहता हूँ जो खुदावंद इस जमीन पर कर रहा है, और इसके लिए मैं उसके सामने सरे तस्लीम खम करता हूँ, उसके सामने ताबे होऊंगा, यानी उसकी मर्जी और उसके मकासद के लिए उसके सामने खुद को झुका देता हूँ। लिहाजा ज़ेरे ज़मीन मिट्टी के नीचे जिस जगह पर जड़ें गहराई में उगना शुरू कर सकती हैं और फिर छोटी बालियां बाहर निकलती हैं, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ नहीं हो रहा, ये बहुत ही छोटा होता है। आप में से जो लोग पौधे लगाते और बागवानी करते हैं
और अपनी खुराक पैदा करते हैं, उनके लिए छोटा पौधा। आप समझते हैं, ठीक है? मेरे ख्याल में मैं जो कहना चाहती हूँ आप सब समझ गए होंगे। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ पौधे की परवरिश और आबियारी के बाद या ग़िज़ाई अज्जा वाले दरख्त के साथ फिर ये नशोनुमा पाते हैं और फिर आखिरकार उसको फल लगता है। लिहाजा आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ कि आप पीछे नहीं हैं। अगर आपकी जिंदगी में मुश्किल है या अगर खुदा बाप आपके साथ है और अगर कोई फल है जिसकी आपको ज्यादा जरूरत है, तो आप खुदा से कहिए। हर एक फल की कोई ना कोई नौयत होती है, तो आप खुदा बाप से इल्तिजा करें कि वो आपके फल की नौयत आप पर जाहिर करे। कलाम मुक़द्दस से आपकी रोजमर्रा जिंदगियों में भी मेरा ईमान है कि वो उन लोगों को सामने लाएगा जो मिसालें बन सकते हैं, जो इस फल को अच्छी तरह ले सकते हैं, जो जानते हैं, जिनके पास कहानियां हैं, जिनके पास खुशी के तजर्बा की कहानियां हैं। मिसाल के तौर पर खुदा या उसकी भलाई का तजर्बा, इस तरह करने की मिसाल जिससे उनकी जिंदगियों को बदल दिया, और वो आपको ये दे सकते हैं। और मुझे ये भी यकीन है कि आप हालात का तजर्बा या उसका सामना बहुत ही बहादुरी के साथ करना शुरू कर सकते हैं। ये आपके लिए एक मौका है मोहब्बत को अपनाने का, खुशी को अपनाने का और अमन को अपनाने का। नीज जहाँ ये मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी को अमल में लाने की दावत या मौका है। अगर आप इसे समझ नहीं सकते, इसे देख नहीं सकते या इसे समझा नहीं सकते, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंगूर का दरख्त जो यस्सु है, उसमें पैवंद शाख के तौर पर आपको जिंदगी के दरख्त के साथ रहना होगा जो आपसे मोहब्बत रखता है, और ये एक भरपूर जिंदगी है। और इस कुर्बत में फल बहुत बढ़ जाएगा। लिहाजा उसके साथ वक्त में एक एक का ख्याल रखें। और इसलिए मैं आपकी हौसला अफजाई करती हूँ कि ये देखने के बाद उससे पूछें कि आप असल में कहाँ फल पर गौर कर सकते हैं, यानी उसकी फितरत पर गौर। उन लोगों के साथ जिनको आप समझ या समझा नहीं सकते या पसंद नहीं कर सकते या आप उनके साथ रह ही नहीं सकते, उससे पूछे कि वो उनको कैसे देखता है, क्या समझता है, और मजा करें और देखें वो क्या करता है। अब मसीह के मसलूब किए जाने के 3 दिन बाद कुछ हैरानकुन हुआ जिस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और कलाम मुक़द्दस फरमाता है, हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था, कब्र आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ पाया। अब जानते हैं, मैंने यह हवाला पढ़ा और मैंने कुछ देखा। मैंने देखा कि मरियम मगदलीनी सुबह सवेरे उठी, शहर की गलियों में से गुजरी। गालिबन उसने खुशबुओं से भरा हुआ वो मर्तबान भी उठा रखा होगा जिसके बारे आप जानते हैं, जो दफनाने की जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। और जैसे ही वो शहर की सीढ़ियां उतरी और उस जगह के करीब पहुंची जहां यीशु को दफनाया गया था, कब्र के पत्थर पर मोहर लगी हुई थी। उसने कुछ देखा वहां पर। जो उसने देखा मैं आपकी तवज्जो उस पर दिलाना चाहता हूं, क्योंकि उसको उसके देखने की तवक्को नहीं थी। ये बिल्कुल गैर मुतवक्के चीज थी, और ये वो चीज थी जो खुदा हम सबको दिखाना चाहता है, क्योंकि कब्र बिल्कुल खाली पड़ी थी। कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि खुदा हल्की और धीमी आवाज में बोलता है और वो करता है, मगर यहां खुदावंद जनाब मसीह वाज़े और बुलंद थे। हम उसकी आवाज सुनने में अपनी काबिलियत और महारत को बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम चौकस रहें, सुनते रहें, खुदावंद खुदा की तरफ से किसी चीज को देखते रहें जो हमसे तस्वीरों में बात करता है, क्योंकि उसके साथ हम आसानी से पहचान सकते हैं। कहा जाता है कि तस्वीरें दिल की जुबान होती हैं। जब हम देखते हैं तो कुछ होता है, और जब हम कलाम में तस्दीक तलाश करते हैं तो ऐसा कुछ होता है। यह एक और कहानी है
उसी बारे में कि जो मरियम मगदलीनी के साथ हुआ, जिसने उस खला को पुर किया जो उसने वहां देखा था। ये महज एक सितारा था, एक ज़मीमा, एक मामूली तगय्युर से ज्यादा था। जो लिखा है उसको देखें, सत्रों के दरमियान नहीं बल्कि वाज़े हिज्जों से ये लिखा हुआ है। और पौ फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यसू को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी, जैसा कि कहा गया था। उन्होंने अमल के जरिए दिखाया। वो आमना सामना होने पर पीछे नहीं हटी, वो दौड़ कर गईं। और वो दौड़कर सीधी किसके पास जाती हैं? और कलाम कहता है, अचानक यसू उनसे मिला और उसने उनको सलाम किया। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े, उसे सजदा किया। जी उठे हुए खुदावंद से मिलने का यही मकसद है। शायद आपने भी कुछ देखा हो, आपने भी कुछ सुना हो। आप अंधेरे में या नए दिन की रोशनी में शायद कुछ महसूस करते हो। शायद आपने ये महसूस किया हो वो अल्फाज जो जी उठे हुए खुदावंद ने मुकाशफा में वाज़े तौर कहे हैं। ये मैं हूं। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। और अगर ये काफी नहीं है तो वो हमें बताता है कि ऐसा करने से तुम गालिब आओगे। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। क्या आप इस पर गौर नहीं करेंगे? अभी अपना दिल यसू के हवाले कर दीजिए। क्या आप मेरे साथ ये करेंगे और दुआ के जरिए उसे अपनी जिंदगी में दावत देंगे? ये इतना आसान है कि एक बच्चा भी ये कर सकता है। और ये सादा दुआ, इससे हम अबदी जिंदगी में दाखिल होंगे। क्या आप मेरे साथ ये दुआ करेंगे? ऐ खुदावंद यसू, मैं हर उस शख्स के लिए दुआ गो हूं जो मेरी आवाज सुन रहा है। मेरी दुआ है कि तू उनके गुनाहों को माफ फरमा और तू उनकी जिंदगियों के दरवाजों पर दस्तक दे और वो तेरे पास आ जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे
ताकि तू अंदर आ सके। ऐ खुदावंद यसू, हमारे गुनाह माफ कर दे और अपने फजल और अपनी रहमत से हमें पाक साफ कर दे। हम तुझे पुकारते हैं, हम अपनी जिंदगी तेरे ही हवाले करते हैं। ऐ खुदावंद, हम कहते हैं हाँ, 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 राह, हक और जिंदगी तू ही है। हाँ, तेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। तेरा शुक्र है बाप, तेरे रहम के लिए तेरा शुक्र हो, तेरे अजायबात के लिए तेरा शुक्र हो, हर बात के लिए तेरा शुक्र हो। मैं इन लोगों के लिए तेरा शुक्र करता हूं और दुआ करता हूं कि तू इन्हें अपने रूह से भर देगा, कि तू उन्हें भरेगा रूह के फल से, और ये कि वो अपनी पूरी जिंदगी इस मामूरी को साबित करते रहेंगे, और ये कि वो बनेंगे रास्तबाजी के मजबूत दरख्त। यसु मसीह के नाम में आमीन। अगर आपने अभी ये दुआ की है तो बराए मेहरबानी एक मुकामी चर्च में ठहरें और अपना तारुफ करवाएं। वो आपका खैर मकदम करेंगे और आपके ईमान की नई सैर में मदद करेंगे। बराह करम इस वीडियो में नजर आने वाले सैकड़ों यतीमों की मदद करें। अतियात बराए। This winter, my prayer for you is that you will be in the right place at the right time. It says in Scripture, go through the gates, clear the way for the people, build up the highway, remove the stones, lift up a banner over the peoples. Jesus said, you are permitted to understand the secrets of the kingdom of God. And one of them is this: not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. Who is the Holy Spirit? The advocate, our intercessor, the Spirit of truth? Join us next time for the mystery of the Spirit. Learn how to learn from Him and walk. No, run. Run on that highway carrying His banner. Freedom.